केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं की परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है, लेकिन जो छात्र अपने आगे की पढ़ाई विदेश की यूनिवर्सिटीज़ में जाकर करना चाहते हैं उनके पास किस तरीके से अब परेशानी आ रही है, आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। Attending RWTH Chakur University in Germany starting September. While my admission itself isn't conditional on me achieving certain marks in boards, I do need a high school leaving certificate for visa processes and university enrollment processes. I believe students should be able to get their necessary documents as soon as possible. Either exams should be cancelled and CBSE should provide based exam certificates based on internal grades. However, it is increasingly looking like this will not be an option that CBSE will be offering. Thus, I believe the exam should be conducted as soon as possible, or the result process should be expedited so that students can get the requisite documents on time. Almost the entire world is impacted by the impact of COVID, and the same is true for the student community, including students, especially aspirants of undergraduate admissions for class of 2025 in foreign universities. High school and university closures was a global phenomenon in 2020 to 21. If we talk especially about Indian students who are planning to go to abroad, they seem to be the worst hit, not only due to the travel and visa related restrictions, but financial restrictions and constraints as well. Many parents have lost their job and are uncertain about the future. How can they afford education abroad? Besides this, international admissions follows a holistic approach, but due to pandemic, students could not engage in various projects they had planned. Additionally, most international universities have shifted to online teaching, and frankly, online tuition is not a solution for everyone. Lab-based research cannot be conducted. Whereas board marks are concerned, I don't see that as a challenge because international universities would honor the process and certificate of Indian government boards. But I think that students have already faced a lot of challenges, anxiety and acute crisis and might not yet be ready to face the post-pandemic world. Personally, the universities I have applied to, I have to submit my 12th result by estimately September and October. But that's something you think afterwards, after the decision is made in India of the class 12 board. And the another thing crossing my mind would be the scenario for vaccination. How will it occur, like if we have to get vaccinated in our own country, domestic country, or to the foreign country we would be studying for if the offline classes are started back again. Approximately 12 to 13 offer letters from universities situated across the globe to continue my studies abroad. This included one of the offer letters from the prestigious University of California. It was a dream come true for me, but I had to accept the offer letter by paying a non-refundable fee by the 1st of May. But seeing the situation, I was not even sure that I'll be able to submit my 12th class results by June 2021. It's not just me. Thousands of other students sacrifice their dreams, their dreamt offer letters just because of the situation. It's not just this. Most of the students have not even received the first dose of the vaccine. And this adds one more obstacle for me or other students to pursue their studies abroad. And by this, I confirm my firm stand against the conduction of offline examinations. And I request all the government officials to please take a fair decision regarding this situation and consider all the factors that are going to be sacrificed during the offline examinations. फॉरेन यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई की इच्छा रखने वाले छात्रों को सुना, जिन्होंने कहा कि परीक्षा में हो रही देरी की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं काउंसलर से और जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है परीक्षा में हो रही देरी को लेकर और किस तरीके के छात्रों के सवाल उनके पास आ रहे हैं। अब तक जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज थी उन्होंने बच्चों को लगातार बहुत सपोर्ट किया था और उनको काफी एक्सटेंशंस भी दी थी कि वो अपना रिजल्ट बाद में सबमिट कर सकते हैं। बट अभी क्योंकि डिले बढ़े जा रहा है, इसके रहते हुए बच्चों को और बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि उन्होंने मोस्टली ये रिक्वायरमेंट हटा दी है कि बच्चों को क्लास 12 के फाइनल एग्जाम सबमिट करने हैं, वो केवल प्रिडिक्टेड एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं वो सबमिट कर सकते हैं और उनकी एडमिशन फाइनल हो सकती है। पर अब बच्चों को दूसरी तरह की दिक्कत ये आ रही है कि जो मोस्ट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने बोला है कि बाय मिड सितंबर या एंड सितंबर तक उनको आके कैंपस में क्लासेस ज्वाइन करनी है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करती है और वो अगर जुलाई से अगस्त तक अगर चलते हैं तो बच्चों को कैंपस जाने के लिए नहीं मिलेगा और उन्हें अपनी क्लासेस मिस करनी पड़ेंगी या फिर ऑनलाइन लेनी पड़ेंगी। इसके अलावा जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं यूएसए की और यूके
की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने सपोर्ट करते करते स्टूडेंट्स को अब लास्ट डेट दे दी है कि बाय फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर उन्हें अपने फाइनल रिजल्ट सबमिट करने हैं, और अगर वो सबमिट ना कर पाए तो हो सकता है कि उनके एडमिशन कैंसिल हो जाए या फिर उनको अगले साल के लिए एडमिशन लेनी पड़े, जिससे उनका एक साल वेस्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, और अगर उनका एग्जाम ही 26 अगस्त तक होता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि सितंबर से पहले उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाएगा, और कई बच्चे हैं जिनकी एडमिशन जो है वो की कैंसिल हो सकती है। स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं कि यूके के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यूके के यूनिवर्सिटीज जो है वो कंडीशनल ऑफर्स देती हैं, जिसका ये मतलब है कि जब पहले उनको एडमिशन आया था उनको ये कंडीशंस दे दी जाती हैं कि उनको एक सर्टेन परसेंटेज लानी है क्लास 12 पे, जिसके बेसिस पे उनकी एडमिशन मिलेगी उनको। अब इससे पहले क्या होता था, बच्चों के एग्जाम्स मई में आ जाते थे और उनको अपना रिजल्ट मालूम होता था, और वो अपनी यूके की यूनिवर्सिटी तब डिसाइड करते थे जब उनको पता चल जाता था कि हम ये कंडीशन मीट कर पा रहे हैं। अब ऐसा हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल किसी यूनिवर्सिटी ने बच्चे को कंडीशन दी है कि आपके 90% मार्क्स आने पड़ेंगे, उन्होंने अब उनको डेडलाइन दे दी है कि से बाय 1 जून या 15 जून तक आपको अपना ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करना है। अब जो बच्चे को कंडीशन मिली हुई है कि उनको 90% लाने हैं, वो सिर्फ गेस वर्क पे अपना ऑप्शन जो है वो सिक्योर कर रहा है, और अगर किसी वजह से उसके 90% नहीं आए तो भी उनकी जो सीट है वो जा सकती है। तो इस तरह की काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, और एक काफी बड़ी और प्रॉब्लम आ रही है वैक्सीनेशन को लेके। कई कंट्रीज हैं जैसे कि यूके, उन्होंने तो ये बोला है कि जो स्टूडेंट्स आएंगे वहां पे वो उनको फ्री में वैक्सीनेट करेंगे, बट कई कंट्रीज हैं जैसे सुनने में आता है कि कनाडा है या यूएस है, वो रेकमेंड कर रही हैं बच्चों को कि वो वैक्सीन लेके आए। अब कई बच्चों का ये बहुत कंसर्न है कि वो एक डोज अगर यहाँ पे ले लें, और गवर्नमेंट ने जो डोज के बीच का गैप इतना बढ़ा दिया है, और अगर वो अगस्त में चले जाते हैं यूनिवर्सिटी तो उनकी सेकेंड डोज कैसे लग पाएगी। स्पेसिफिकली जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाया है वो कैसे ले पाएंगे सेकेंड डोज, क्योंकि कोवैक्सीन अभी सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है। तो बोर्ड एग्जाम्स के ओवरऑल डिले होने से स्पेसिफिकली फॉरेन यूनिवर्सिटीज के बच्चों को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज अब तक बहुत सपोर्टिव रही हैं, बट वी आर नॉट श्योर कि अब वो कितने टाइम तक और स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर पाएंगी। कई और इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं जैसे कि आईबी बोर्ड है, उन्होंने अपने एग्जाम्स ऑलरेडी कैंसिल कर दिए हैं, एंड प्रीवियस असेसमेंट्स के बेसिस पे वो स्टूडेंट्स को मार्क्स दे रही हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट हमारे जो सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड्स के कई स्टूडेंट्स हैं उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो लेट्स होप कि सीबीएसई इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी फर्दर डिसीजन लेगी, ताकि स्टूडेंट्स के फेवर में हो डिसीजन, एंड जिन स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा खर्च किया है, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अपने यूनिवर्सिटी लीग की फाउंडर और काउंसलर साक्षी मित्तल को सुना, जिन्होंने कहा कि सीबीएसई की परीक्षा में हो रही देरी की वजह से छात्रों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैक्सीनेशन को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ है, यह भी एक परेशानी है। गणेश पाठक, ईटीवी भारत, दिल्ली।